Hello, 4th standard student. Today we are going to learn EVS 1 and lesson number 2, half lesson, remaining half lesson. In the previous video, we had completed half of the lesson from arboreal, new term. That word we were going to see the meaning. Now look, meaning is given here. What is the meaning of arboreal? The word comes from the Latin word arbor, which means tree, and arboreal means living in trees. What does that mean? The animals which live on the tree, they are called arboreal. Okay, this is the new meaning. कि जो animals tree पर रहते हैं उनको arboreal कहते हैं. Now look here, which are those animals we are going to see? That animals like monkeys and squirrels live on trees. It gives them certain advantages. Being at a height, they are better able to defend themselves from their enemies. Besides, they can eat the fruits of the trees to satisfy their hunger. And such animals are said to be arboreal. Now look, the animals living on the trees, they get extra advantages. And which are those advantages? Look at monkeys and squirrels. You know very well that they are found on the trees. Okay, and the benefits they get, कि उनको benefits कौन सा मिलता है कि वो अपने आप को बचा सकते हैं प्रीडेटर से, शिकारियों से रक्षा कर सकते हैं. And another thing is that they can eat fruits also from the tree. Means they can get both the purposes, okay, fulfilled, food and safety. And such animals are called arboreal. Now look here, unknowingly they help the tree with whose support they live. As they move around here and there in the surroundings, they spread the seeds of the fruit and they have eaten through their droppings. Because of these, new trees grow in different places. Now what happens actually, you know, they just help the nature also, these animals, and actually unknowingly it happens. They don't know that what they are doing. It's quite a natural thing. ये नेचुरल है, अननोविंगली है कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो ट्री को क्या हेल्प कर रहे हैं. ओके, क्योंकि जो ट्री उनको सपोर्ट देती है रहने के लिए, प्रोटेक्शन देती है, फूड देती है, तो वो क्या करती है कि ये ट्री के फ्रूट्स खाकर वो पूरे सराउंडिंग में जो ये करते हैं खाने के बाद में, तो उनके सीड्स उनके बॉडी में से निकल के इधर उधर फैल जाते हैं ग्राउंड पर, और उसमें से डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट प्लेसेस पे फैल जाते हैं, और उसके कारण न्यू प्लांट्स निकलते हैं ज़मीन में से, न्यू ट्रीज़ बनते हैं. इस तरह से वो पूरा प्लांटेशन करते हैं ऐसे एनिमल्स. नाउ लुक, देख, these are the, look here in the picture, the monkeys are playing on the tree. Some of them are sitting also. Means it is their house, tree is their house. Okay, and they can enjoy that house. So some types of birds too find trees useful for building their nest, and birds also, trees are very useful for them to build their nest. अभी some बर्ड्स को भी नेस्ट बांधने के लिए, उनका घर बांधने के लिए क्या चाहिए? ट्रीज़ का नेसेसिटी है. नाउ लुक हियर, डू यू नो so do you know now? Let's see your knowledge. An egret rides on a buffalo's back. Now look, the egret, actually this is the bird, one of the bird. In the picture you can see that the bird is sitting on the buffalo's back. They are called the egret. And why do they sit on the buffalo's back? The reason is given here, कि वो buffalo's के back पे क्यों बैठे, उसके पीठ पर क्यों बैठे ये egret birds. When a buffalo is grazing in a grassy area, and you are very likely to see an egret riding on its back. And what could be the reason for that? कि जब ये बफेलोज ग्रासी एरियाज़ में ग्रेस करते हैं, खाते हैं, घास को खाते हैं, तो उस टाइम
हम देखते हैं कि वो इग्रेट्स उनके बैक पर बैठे, ये इसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई दे आर जस्ट सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द बफेलोज. Okay, now see, a certain kind of egret feeds on different kinds of insects. Grass is full, grass is full of all kinds of insects, but because they are hidden in the grass, the egret cannot see them and catch them. So what happens, you know that? What is the food of the egret? First of all, we are going to see that. द इग्रेट क्या खाते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स खाते हैं, और ये इंसेक्ट्स कहाँ छुपे होते हैं, ग्रास में छुपे होते हैं, बड़े बड़े ग्रास में. ओके, और ये इग्रेट उनको घास में से फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो इतना डीप और डेंस घास रहता है. तो क्या होता है फिर, एज द बफेलोज ट्रेड्स ऑन द ग्रास, इट फ्राइटन्स द इंसेक्ट्स विच फ्लाई आउट ऑफ द ग्रास, एंड द इग्रेट ऑन द बफेलोज बैक makes no mistake in swooping down to catch and eat them up. तो what happens actually कि वो जब बफेलोज के बैक पे बैठे रहते थे और बफेलोज ये घास में चरती है, जैसे जैसे बफेलोज आगे बढ़ती है घास में, तो उसके कारण वो जो इंसेक्ट्स उसके अंदर छिपे रहते हैं, दे जस्ट फ्लाई अप, वो उड़ते हैं. और इसी कारण क्या होता है कि जो उसके बैक पर बैठे हैं ये ग्रेट्स बर्ड्स, वो उनको पकड़ कर खाते हैं. दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द बफेलोज. नाउ लुक हियर, सीजनल चेंजेस इन लिविंग थिंग्स. अभी जो लिविंग थिंग्स में सीजनल चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है ना, उस तरह से उनके लिविंग में भी, लिविंग थिंग्स में भी चेंज आते हैं. देखो, फाइंड आउट नाउ, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ दैट. सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन हियर एंड यू आर एक्सपेक्टेड सपोज टू सॉल्व देम. ये तुम्हारा होमवर्क भी रहेगा. These are the questions, you see that carefully. First question I am reading, what is the Marathi name for mango blossoms? Mango blossoms का मराठी नाम क्या है? And when do mango trees blossom every year? और कब mango trees को every year में हर साल blossom आता है? Okay. The second question is, does the banyan have leaves throughout the year? सेकेंड क्वेश्चन है कि बैनियन ट्री जो है उसको क्या पूरे साल में लीव्स रहते हैं उसके ऊपर. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, वी सी फ्रॉग्स एवरीवेयर ड्यूरिंग द रेन्स, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे डिसअपियर इन समर. अब हम रेनी सीजन में फ्रॉग्स को एवरीवेयर देखते हैं, वो सब चारों तरफ फैले होते हैं, लेकिन समर सीजन में वो कहाँ जाते हैं, वो क्यों नहीं दिखते. एंड द फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ द सीजन फॉर जामुन्स. अभी जामुन जो होते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ फ्रूट, ब्लैकबेरीज इट इज़ कॉल्ड, तो वो उनका सीज़न कौन सा है. ये ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट देयर आंसर्स एंड राइट. इट्स योर होमवर्क. द अनदर पैरा वी आर गोइंग टू गो थ्रू नाउ. हम अनदर पैरा को भी पढ़ेंगे. लुक एट द पिक्चर ऑल्सो, दैट एन ओल्ड मैन इज फैनिंग हिमसेल्फ. ओके, सो व्हाट इज दैट एंड व्हाई इज ही डूइंग? सी दैट नाउ. In the para we are going to see that we have 3 seasons. Okay, summer, the rainy season and winter. It is very hot in summer. We wear cotton clothes and drink plenty of water. अभी देखो हमारे यहाँ पर 3 सीजन्स है. समर है, रेनी सीज़न है और विंटर सीज़न है. और समर सीज़न में बहुत गर्म होता है, बहुत हॉट होता है और हमको बहुत प्यास लगती है. ओके, और इसी कारण हम वो कॉटन क्लॉथ भी पहनते हैं. ओके, इन द पिक्चर यू कैन सी दैट एन ओल्ड मैन इज़ फैनिंग हिमसेल्फ. वो फैन से, अपने हैंड फैन से क्या कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं. ओके, इन द रेनी सीजन नाउ वी यूज़ अम्ब्रेलाज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेन कोट्स एंड बूट्स टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन. अभी रेनी सीजन में क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के रेन कोट्स पहनते हैं और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं. ओके, और बूट्स भी पहनते हैं जो बड़े होते हैं. वो इसलिए होते हैं कि हम रेनी सीजन में वेट ना हो, गीले ना हो. देखो, अनदर थिंग इज़ दैट इन विंटर वी वेयर वूलन्स एंड अदर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड. अभी विंटर सीजन में क्या होता है कि
हमको कोल्ड से बचने के लिए हम वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर वगैरह, मफलर वगैरह, डिफरेंट टाइप्स के, ओके, जिससे हमारा कोल्ड से प्रोटेक्ट होते हैं, हमारा प्रोटेक्शन होता है. नाउ लुक हियर अनदर पैरा ऑन द नेक्स्ट पेज. यू कैन सी द ट्री हियर, ओके, व्हिच डज नॉट हैव leaves on it. Why this happens? We are going to see. Just as the three season affect us, they affect all other living things too. We see these changes taking place in the living world every year. Now, year after year. अभी देखो, ये जो 3 सीजन से जैसे जैसे चेंज होते हैं ना, सब लिविंग थिंग्स के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है. हम उसको देख सकते हैं डिफरेंट थिंग्स पे. पूरे ऑल वर्ल्ड में ये होते रहता है और ये चलते रहता है ईयर आफ्टर ईयर. तो लुक हियर नाउ, विंटर इन महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ पोंगल. दैट इज़ द फॉलिंग ऑफ लीव्स, एंड दैट इज़ बिकॉज many trees shed their leaves in winter. तो विंटर में क्या होता है इन महाराष्ट्र में कि ट्रीज़ पर के जो भी पत्ते हैं सब गिर जाते हैं, ओके, और इसको पोंगल भी कहते हैं हम. नेक्स्ट पैरा वी आर गोइंग टू सी द कोर्स ऑफ many furry animals become thicker in winter, and this keeps them warm in the cold season. And such growth of hair is especially noticeable in animals like sheep and some types of goats and rabbits. अभी विंटर में क्या होता है कि जो फरी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर फर आता है, यानी बड़े बड़े बाल आते हैं, और ये बाल उनको कोल्ड से बचाता है, ओके. हमने देखा है कि बहुत से एनिमल्स में ये ग्रोथ होती है, उनके ऊपर फर आता है, जैसे कि शीप है, गोट है, राइट, सम टाइप्स ऑफ रैबिट्स भी है, ओके. द एंड ऑफ विंटर इज़ आल्सो द टाइम फॉर द मैंगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लॉसमिंग, एंड दिस ब्लॉसम्स आर कॉल्ड मोहूर इन मराठी. सो मोहूर इन मराठी, लुक हियर द क्वेश्चन you were asked here in the first page. The answer here you got that blossom of mango. जो मैंगो को ब्लॉसम आता है ना, उसको मोहूर कहते हैं मराठी में, ओके, और वो विंटर में ही आता है. नाउ एट द क्लोज ऑफ द मंथ ऑफ February it becomes warmer, and by March we begin to feel the heat. It's time for summer. अभी देखो, फेब्रुवरी के एंड में वार्म्थ शुरू हो जाता है, यानी गर्मी शुरू हो जाती है. इसकी ये शुरुआत है समर की, ओके. मार्च से हमको बहुत गर्म होना शुरू हो जाता है, हॉट होना शुरू हो जाता है. अभी देखो, इन दिस सीजन मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स. फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender, and their color changes to green as the leaves grow bigger. The call of the कोयल is heard in many places. अभी देखो, ये जो सीज़न है समर का, इसमें क्या होता है, न्यू लीव्स आते हैं ट्रीज़ को, नए पत्ते आते हैं, और जो फॉरेस्ट है ना, ऐसा दिखता है जैसे उसने कुछ कॉपर कलर ये कर लिया हो, उसके ऊपर कॉपर कलर मालूम है ना, कॉपर कलर इसके जैसा रहता है, येलोइश और समथिंग शाइनी, ओके. और क्योंकि उसका जो लीव्स आते हैं उनके ट्रीज़ पर, वो रेडिश रहते हैं और शाइनी रहते हैं, और वो बहुत टेंडर भी रहते हैं, नाजुक रहते हैं, ओके, बिकॉज दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लीव्स. और उनका कलर फिर चेंज हो जाता है, उसका ग्रीन हो जाता है उसके बाद में जब वो बिगर होते हैं, ओके. और इसी टाइम पर हमको कोयल का भी आवाज़ सुनाई देता. कोयल इज़ अ बर्ड, यू नो, एंड इट इज़ अ एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन ऑफ समर सीजन व्हेन द कोयल कॉल्स आउट. इन समर नाउ द मार्केट इज़ फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स फॉर अस टू बाय, and this is the season for these fruits. Although
mango trees grow all over Maharashtra and the Konkan region is particularly famous for its mangoes. समर में क्या होता है, which are the fruits are grown in summer and the market is full of these fruits. These fruits are watermelons. You know that watermelons are seen everywhere, and some seasonal fruits are also available in the market. And mangoes, this is the season of mangoes. Konkan region is famous for this mango fruit. Okay, and now look, it is also the season for cashew nuts. The red arrow cashew apples can be seen growing on the cashew trees on the hillsides in the Konkan region. अभी देखो, ये सीज़न किसका, कैशू नट्स का भी है, काजू का सीज़न है, क्योंकि रेड और येलो कलर के कैशू है ना, वो उनके ट्रीज़ पर दिखते हैं. ओके, और जो कोकन का हिल साइड का एरिया रहता है, वो ये कैशू नट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं. एंड दिस इज़ द सीज़न फॉर द कैशू नट्स आल्सो, द समर सीज़न. रिमेंबर दैट. In the next page now, in June, black clouds make their appearance. The rainy season is a short way away, and by this time we begin to get jackfruits, jamuns, and what is that? Java plums, and what is that? Karan and as. Okay. See that now the other thing, now as soon as the June comes, what changes we can see? We can see that the clouds start gathering in the sky. जून का महीना आते बराबर हमको क्लाउड्स दिखते हैं, और ये है रेनी सीजन का आइडेंटिफिकेशन. दिस इज द सिंबल ऑफ रेनी सीजन, कि रेनी सीजन अभी थोड़ी देर दूर पर है. और जैकफ्रूट्स जैसे और जामुन जैसे फ्रूट्स हैं ना, ये भी हमको ट्रीज़ पर दिखते हैं. So the seeds of grass and other plants lie scattered all over the ground, and they sprout and start growing as soon as it begins to rain, and it becomes green everywhere. And this greenery is soothing after the hot summer and months. Sometimes we can even see the rainbow with its 7 colors in the sky. Now what changes we can see in the rainy season? Look here, that we see the grass, green grass everywhere, because the seeds of the grass scattered everywhere on the ground. This time they sprout and start growing. So grounds are covered with the green grass. Okay, and everywhere we can see all this time. And rain starts, and we can get the soothing effect, and means actually we can get the comfort from the hot season of summer. और हमको है ना, समर के जो हॉट सीज़न रहता है ना, जो गर्मी रहती है, उससे बहुत कंफर्ट मिलता है ये रेनी सीजन में. ओके, एंड समटाइम्स वी कैन सी द रेनबो आल्सो इन द स्काई. दैट इज़ द 7 color शाइन्स वेरी नाइसली इन द स्काई. ओके, एंड एज इट बिकम्स वेट एवरीवेयर frogs appear, and we also hear the loud noise of frogs croaking all together. And this is the time for the frogs also, and we can hear their croaking sound. Frogs भी सब तरफ दिखते हैं और उनका croaking sound भी हम सुन सकते हैं. As the rainy season ends, it is time for winter to make a comeback. It gets colder and colder. This is not good for the frogs. They go deep under the ground for a long period of slumber, which lasts for 7 or 8 months. और जैसे ये रेनी सीज़न ख़त्म होता है, वो क्या होता है कि ये जो, क्योंकि ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है, द सीज़न स्टार्ट्स गेटिंग कूलर, और ये क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता है. इसीलिए वो क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड चले जाते हैं, डीप एकदम ज़मीन के अंदर, और वो भी 7 और 8 महीने के स्लीप के लिए वो बाहर नहीं निकलते हैं. वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड. द डिफरेंट सीजन्स, समर, विंटर and the monsoons are the time for doing different tasks in the fields. और देखो, हम फूड के लिए डिफरेंट सीजन्स पर डिपेंड करते हैं. अभी देखो, समर है और विंटर और द मॉनसून है. ये जो भी है, ये हम इस
टाइम पर फील्ड में काम करते हैं और क्रॉप्स का पूरा वर्क होता है जिससे हमको फूड मिलता है. सी नाउ व्हाट वी हैव लर्नड. द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड इन द एनवायरनमेंट एंड देयर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स. तो देखो ऑल द लिविंग थिंग्स का जो भी नीड्स है ना वो एनवायरनमेंट से ही पूरा होता है और हमको डिफरेंट टाइप्स के लिविंग थिंग्स सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, सम आर्बोरियल एनिमल्स लाइक monkeys and squirrels live in trees and feed on them, and their droppings help trees to grow in new places. Some birds build their nest in trees. Now arboreal animals like monkeys and squirrels, those who live on the tree, what do they do? They just drop the seeds what they eat from the tree. Those fruits they eat, they just drop the seeds after that, and because of that new plantation come up. नए plantations आते हैं उनके droppings के कारण. And each type of living thing thrives where all its needs are fulfilled. For example, tigers live in grasslands and aquatic plants live in water. अभी देखो जहाँ पर भी जो living things की ज़रूरत पूरी होती है ना वहाँ पर वो रहते हैं. जैसे कि टाइगर ग्रासलैंड में रहता है, ओके, और एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में रहते हैं, ओके, बिकॉज देयर नीड्स आर फुलफिल्ड देयर. अभी देखो चेंजेस इन सीजन्स अफेक्ट लिविंग थिंग्स. इन अ विंटर ट्रीज शेड लीव्स एंड एनिमल्स कोट्स ग्रो थिकर. एट द स्टार्ट ऑफ समर ट्रीज गेट न्यू लीव्स and in the rainy season it becomes green all around. Frogs appear and crops grow in fields. Look now, अभी चेंजेस होते हैं ना इस सीज़न में, ये तो हमको मालूम है. लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस होते हैं और विंटर में ट्रीज़ और उसके जो लीव्स है वो पूरे निकल जाते हैं, उस पर एक भी लीव्स नहीं रहता है. और एनिमल्स के ऊपर है ना थिक फर आ जाता है, उसके ऊपर बाल आ जाते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन होता है कोल्ड से, ओके. समर में क्या होता है? समर में पूरे ट्रीज़ को लीव्स आते हैं और सब ग्रीन हो जाते हैं उसके बाद में, ओके. और दीज आर एक्चुअली, और उसके बाद में हमको फ्रॉक्स भी दिखते हैं. ये रेनी सीजन में होता है, फ्रॉक्स सब तरफ दिखते हैं. दीज आर द चेंजेस वी कैन सी बिकॉज ऑफ द सीजन. यू गॉट टू नो नाउ. सो दिस इज योर होमवर्क. आई एम गिविंग यू सम ऑफ द होमवर्क. यू जस्ट सी दिस think and tell, okay. Think and tell. From here you are going to write these questions. 4 questions are given. You can find the answers from the book itself, from the test. Find out also, see questions and answer the following and fill in the blanks. This is your homework. Look now on the page number 15. So you complete the homework and send it on my number.